This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on something very important, which we really have no idea. And when you have no idea about something, you don't improve that thing. Nobody has ever told us the reason of being poor in English. Once I went to Muhammad Ali Jinnah University as a guest speaker. I was invited there, and it was a class of MBA. And the students asked me a question, Sir, why are we poor in English? So, why, after even completing this master's program, we will take admission in language class for getting better job? You have done an MBA, but you cannot speak in English, you won't get a good job. But if you have done simply bachelor's and you speak English fluently, you are better than an MBA. Why, sir? Why? This question was asked few years back, and I submitted an answer on the spot that we have been learning language since our school life. And we have been learning words. And there are two kinds of words: content words and structural words. और ऐसे वर्ड्स तो हम बोल लेते हैं, ऐसी इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं. Yesterday I Hyderabad went, my family, my kids, everybody happy. Suddenly a trawler, a bus, accident, people, blood, injury, crying, shouting, fire, suddenly fire. I called ambulance, police, FC, Rangers, and other ARY, press. Everybody came, rescue. ऐसी इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं. जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो अल्फाज कंटेंट वर्ड्स हैं. देखो, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है. तुम लोग कंटेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करके भी किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी. एक बैंक रॉबरी आपको डिस्क्राइब करनी है, नो मैटर यू स्पीक राइट और रॉन्ग, रेज योर हैंड and tell me about the bank robbery in English. Sir, two robbers, time 2 o'clock yesterday. I standing outside the bank. Two robbers go bank. People shouted, alarm, police arrested. Thank God. Nobody died. है कोई बैंक रॉबरी मुझसे शेयर कर सकता है? नो मैटर हाउ पुअर योर इंग्लिश इज, आप कंटेंट वर्ड्स आप सोचना शुरू करें, आइडियाज लेकर आए आप अपने जहन में सिर्फ, और उन आइडियाज को सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें. रेज योर हैंड व्हेन यू आर रेडी. आपके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आपके पास बहुत सारे कंटेंट वर्ड्स मौजूद हैं. कंटेंट वर्ड्स कहते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. आप मोटे मोटे वर्ड्स तो बोल सकते हैं ना, बैंक, पुलिस, रॉबरी, किल्ड,
looted money, jewelry, mobile phones. A girl slept, shouted. Yes. Who is going to share a bank robbery with me? By using broken English, I don't mind. Please. Start like this. Yesterday. Yesterday. Am I audible to all of you? Yes, please raise your hand. Nobody can come up with bank robbery. Yes, Shagufta. A bank robbery scene by using content words. माइक जब खोलने तो बंद मत किया. Audible, sir? Yes, go ahead. Start like this. Yesterday. Yesterday, I was uh, yesterday I was standing in front of bank, and two people come outside from bank. Sorry, sir. Yes, Sayyida Fatima. Sayyida Fatima. जी hello एक second Hansina. Hello sir. Yes. I have to use just the content word or I have to tell a story about it. You can come up with the structural words as well as I don't mind. Okay. Yesterday I went to a bank to deposit my fee voucher of my university. Suddenly, two robbers came in and start shouting at us. We were at the gunpoint of them, and the security guard couldn't do anything because he was old and weak. We tried to call the police, but they took all our mobiles. They took all of our money, and even they try to take the money from the bankers. The police came and they help us out. It was very dangerous experience for me. That's very good. That's very good. Yes, Ikra. Sir, I remember that last year when I worked in a bank, so I heard about a robbery in a bank. It was a very famous bank, and the group of robbers went there and took all the money and just run away. And after the investigation, the police try to investigate and come to know that manager was involved with the theft. So all and manager after run in Dubai. So it was a very big robbery in our area, by taxing. So still people are remembered. It's about 17 million. Yes, that's very good. That's very good. Yes. Sidra Daud. Yesterday, when I was standing behind the bank, suddenly two robbers comes and looted the whole bank, and they also target me, and they also target me and snatching my purse and mobile as well. And people are shouting in the bank, and everybody is running toward the main door, but snatchers are also following them and snatching mobile phones and different material from them. That's very good. Yes, Khushbu. Khushbu. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.
I went to a bank yesterday. I some person came in a bank with some weapons, and they said to all person to hands up and don't move. And they also Don't move. Shoot you. they say if you move, then we shoot any person. And they also uh, 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 went to the room of manager and and stopped to him for the calling to police. And they snatched whole money from the bank. And for a for 2 or 3 hours, the all persons are under the custody कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? Um, that's it. Under the custody, English में ही है, under the custody. Under the custody. अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, मकसद क्या था आप लोगों से, हम ये बात कर रहे थे कि व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू हैव कंटेंट वर्ड्स इन योर मेमोरी। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो ये आपकी गलत फहमी है, इट्स योर मिसकॉन्सेप्शन। मैं कोशिश करूंगा जब आप मंडे को अपनी स्पोकन क्लास के अंदर जाएं तो आपकी टीचर आपको कुछ वर्ड्स दे देगी और कहेगी बोलो। उन वर्ड्स को यूज करते हुए आप स्टोरी बना देंगे, लेकिन आप पता है क्या गलतियां कर बैठेंगे। जो गलतियां आप लोग करते हैं, आपकी पहली गलती जो होगी, अगर मैं कंटेंट वर्ड में कोई गलती निकालूं तो एक ही गलती होती है और उस गलती को हम कहते हैं वर्बल वर्बल एरर हमें नजर आता है। अगर हम वर्बल एरर कहां पर होगा, वेट कीजिएगा, अच्छा जो वर्बल एरर है वो टेंसेस में नजर आएगा आपको। भाई ज्यादा से ज्यादा टेंसेस हमें पढ़ने पड़ेंगे, मॉडल वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे, कंडीशनल्स पढ़ने पड़ेंगे, पैसिव पढ़ लेंगे, बस खत्म हो जाएगी वर्बल एरर की मिस्टेक। ये तो बड़ी लिमिटेड बात है, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, ये 3 टॉपिक आप पढ़ ले, आपके वर्बल एरर काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। और एक टॉपिक मैं आपको और बता देता हूँ, पैसिव पढ़ लें, पैसिव के बाद और अगर आगे चलते हैं तो फिर नरेशन पढ़ लें, लेकिन आपकी वर्बल एरर्स खत्म हो जाते हैं ये 3-4 टॉपिक्स पढ़कर। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है आज के सेशन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल वर्ड्स, जिसको हम कभी फोकस नहीं करते। हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स की होती है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस। और इसका हमें एहसास नहीं होता, हम कहते हैं हम बहुत अच्छा लिख कर आए थे, हमने बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं आर्टिकल्स की, प्रेपोजिशंस की और कंजंक्शंस की। एक छोटा सा भी आप सेंटेंस लिखते हैं ना, ये देखें आपके पास एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, he went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event but the event cancelled and he came back by train on Sunday। अब ये छोटा सा सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है, उसमें देखिए कितने सारे प्रपोजिशंस हैं, कितने सारे आपको आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं और कितने कंजंक्शंस नजर आ रहे हैं आपको। आप कभी भी आज से पहले आपने रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग करते वक्त कभी इन चीजों को फोकस नहीं किया। आज के बाद जब किसी को सुनो, whenever you listen to anyone, whenever you read anything, whenever you write anything, you have to focus on these 3 things: articles, preposition and conjunctions। You cannot make a sentence without these 3 words। और इसकी डेफिनेशन ये है, structural words are meaningless but they make your sentence meaningful। ये खुद meaningless होते हैं लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, आइए आगे चलते हैं।
अब वो कहते हैं he went to Lahore with his friend. He went to Lahore with his friend by PIE, और नीचे देखिए I am going to Lahore with my son on Sunday by Divo at 9 PM to attend an important event. एक सेंटेंस और उसके अंदर आप देखें आपकी जो गलतियां हैं वो कितनी ज्यादा हो सकती है। आपको एक असाइनमेंट छोटा सा दे रहा हूं, आप इस पैराग्राफ को हैंड रिटन कीजिएगा, और हैंड रिटन करते वक्त आप इस पैराग्राफ में से प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स और कंजंक्शंस को बाहर लेकर आइएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, सर्कल कर दीजिएगा। जैसे आपने लिखा आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे, आपने सर्कल कर दिया एट को। हैंड रिटन करेंगे तो हैंड रिटन करके आप सर्कल करते रहा करें। एंड बिगिन माय मॉर्निंग रूटीन बाय को आपने सर्कल कर दिया। ब्रशिंग माय टीथ एंड को आपने सर्कल कर दिया। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस को आप सर्कल करेंगे, और सर्कल करने के बाद जब वो काम कर लें कि सर देखें मैंने, और उन सर्कल को ही फिर आप फोकस करेंगे अपनी जिंदगी में। आप फिर मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा 03170296 इस नंबर के ऊपर फिर आप मुझे अपना असाइनमेंट फॉरवर्ड कीजिएगा। सर मैंने लिख लिया, ये देखें इसमें ये आर्टिकल है, ये प्रेपोजिशन है और ये कंजंक्शन है। और फिर उस राइटिंग को करवाने का मकसद ये है कि आप जब भी कुछ रीड करें, whenever you read anything, whenever you try to speak, you must focus on these 3 aspects. अब मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वाई आर यू कंजंक्शंस अभी आ रहे हैं बेटा, कि मैं उसके ऊपर बात करूंगा। वाई आर यू वीक इन इंग्लिश, वाई आर यू पुअर इन इंग्लिश, बिकॉज यू हैव पुअर नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस। और ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर मैं इनको 10-10 दिन भी पढ़ा दूं तो उसके बाद भी आप गलतियां कर रहे होंगे, क्योंकि गोरा खुद अपनी जबान से कहता है, अपनी किताबों में लिखता है, the more you expose yourself to English language, the more you understand preposition. जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, जितना आप इस जबान को एक्सपोज करेंगे, उतना आप prepositions को अंडरस्टैंड करेंगे। तो prepositions have no fixed rules. हम कोई भी वर्ड याद करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके आगे कौन सा preposition लगेगा। हम आर्टिकल्स को भी देखते हैं, हम कंजंक्शंस के रूल्स को भी अभी आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मैं इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आपसे लेक्चर भी शेयर करूंगा। एक और असाइनमेंट नोट कीजिएगा और जैसा कह रहा हूं वैसा फॉलो कीजिएगा। अब आपको सर ने बता दिया कि पहली प्रॉब्लम आर्टिकल्स है, तो आज आपको आज की तारीख में आर्टिकल्स का लेक्चर मिल जाएगा। आप आज सोने से पहले उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर 1 घंटे का होगा, उसके साथ उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और संडे को आपका आर्टिकल्स का टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपको मिलेगा कल साथ में कंजंक्शन भी दूंगा। कंजंक्शन में आपको क्या करना है, उसका भी 1 घंटे का लेक्चर है, वो आपको सुनना है, ठीक है। लेक्चर के साथ पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी है, तो समझाता जाता हूँ और एक्सरसाइजेस देता जाता हूँ, वो सॉल्व करेंगे, आंसर्स भी अवेलेबल हैं। और संडे को कंजंक्शन का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद स्टेप 3 प्रेपोजिशंस के लिए मैं आप एक लेक्चर सुनेंगे, और लेक्चर के बाद मैंने आखिर में बताया है कि बेटा ये 12 एक्सरसाइजेज हैं, इनको आपको 12 दिन तक सॉल्व करना है। अच्छा, जब एक्सरसाइज सॉल्व कर लो ना, तो कोशिश करना उसको पेपर पे लिख लेना, या तो उसका प्रिंट आउट ले लेना, लेकिन उसको डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करते रहना। आज रिवाइज करना, कल करना, परसों करना। जब तुम 2 हफ्ते तक चीजों को रिवाइज करोगे ना, तो कई लाखों से अच्छे हो जाओगे। तुम्हारी प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएंगी, मैंने नहीं कहा खत्म हो जाएंगी। तुम आर्टिकल्स की मिस्टेक्स करते वक्त थोड़ा सा होशियार हो जाओगे कि नहीं, यहाँ पर आ नहीं आ सकता, यहाँ दा नहीं आ सकता, यहाँ तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता। आपको अभी पता ही नहीं है कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं आ सकते, तो आप जब वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शंस क्या है, आइए कंजंक्शंस पर भी बात करते हैं, आगे चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स।
content words have some meanings, but you cannot make a sentence with the help of only content words. You always need structural words. Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. आ गई बात समझ? ठीक है, तो इस असाइनमेंट को बेटा फॉलो कीजिएगा, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस और prepositions. Now move towards our next topic of the day,